السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ماس فاروقی اور پیش خدمت ہے خبرنامہ۔ سب سے پہلے میری جانب سے اور 4 ٹی وی کے تمام اسٹاف کی جانب سے عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام عالم میں امن و امان قائم فرما دے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ تلنگانہ میں بی جے پی حکومت میں آتے ہی مسلم تحفظات برخاست کر دے گی، بی جے پی کی کامیابی یقینی، امت شاہ کا خطاب۔ غیر موسمی بارش سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ پیش کرنے چیف سیکریٹری کو وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ وزیر کملاکر نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، پوری مدد کرنے کا دیا تیقن۔ کے سی آر سے سمجھوتا کرنا میرے خون میں نہیں، کے سی آر کو بے دخل کرنے تک جدوجہد کرنے کا عزم۔ منگوڑ انتخابات میں 25 کروڑ روپے لینے کا بی جے پی نے الزام لگایا۔ حضور آباد میں بھی 25 کروڑ کی رقم لینے کا پی آر ایس نے لگایا الزام۔ کینسر کے مریضوں کے لیے ریاست بھر میں ڈے کیئر سینٹرز، مفت طبی معائنے و ادویات۔ سدی پیٹ سینٹر کا وزیر صحت نے کیا افتتاح۔ شمس آباد میں الیکٹرک بائکس کے شو روم میں آتش زدگی کا واقعہ، 16 بائکس جل کر خاکستر، شارٹ سرکٹ کا شبہ۔ کرکٹ بیٹنگ معاملے میں 2 افراد گرفتار، بھاری رقم ضبط، میلر دیوپلی پولیس کی کارروائی۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ، ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج، مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام نورانی لباس، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال اینڈ ملک پیٹ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ تلنگانہ میں بی جے پی اقتدار میں آتے ہی مسلم تحفظات کو ختم کر دے گی۔ چیوڑلہ میں سنکلپ جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی آر ایس پارٹی جن شعبات میں مسلم تحفظات فراہم کر رہی ہے اس کو برخاست کر دے گی، ایس سی ایس ٹی بی سی کے ساتھ ناانصافی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ بی سنجے کو جیل میں ڈالنے سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ کے سی آر کان کھول کر سن لے، بی جے پی کارکن جیل جانے سے نہیں ڈرتے، اقتدار سے بے دخل کرنے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ امت شاہ نے کہا کہ ارکان اسمبلی کو اسمبلی میں بولنے کا موقع نہیں دیا تو تلنگانہ عوام کے سامنے کھل کر بول رہے ہیں۔ پولیس اور انتظامیہ پر کے سی آر کا غلبہ ہے، اس لیے مرکزی اسکیمات کو بنیادی سطح تک پہنچنے نہیں دے رہے ہیں۔ کے سی آر تلنگانہ عوام کو زیادہ عرصے تک مودی سے دور نہیں رکھ سکتے۔ تلنگانہ میں بی جے پی اقتدار میں آئے گی۔ تلنگانہ میں 2 لاکھ مخلوعہ جائیدادیں ہیں۔ انتخابات کے سامنے ہی تقررات کا اعلان کیا ہے۔ ٹی ایس پی ایس سی امتحان کا پرچہ افشا ہوا ہے۔ ٹی ایس پی ایس سی امتحان کا امتحانی پرچہ افشا ہوا ہے۔ کے سی آر نے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلا ہے۔
केसीआर को 1 मिनट भी इख्तियार में रहने का हक नहीं है। अमित शाह ने कहा कि TSPSC पेपर लीक मामले की बरसरे खिदमत जज के जरिए तहकीकात कराई जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर नहीं किया गया तो बीजेपी इख्तियार में आने के बाद इसकी तहकीकात कराई जाएगी और कातियों को जेल में डाला जाएगा। तेलंगाना में केसीआर का काम तमाम होने वाला है तो वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। 2024 में बीजेपी इख्तियार में आने वाली है। नरेंद्र मोदी दोबारा वजीर आजम बनेंगे। अमित शाह ने कहा कि मजलिस केसीआर की मजबूरी है, बीजेपी की नहीं। बीआरएस की कार का स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार किस सिम जा रही है। कोई भी सरकार नहीं चल सकती जिसका स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में हो। उन्होंने कहा कि केसीआर अब जुल्म बंद करे, जो वक्त बचा है अच्छा काम करे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिले करीमनगर के चिपा डंडी देही इलाकों में और रियासत के दीगर मकामात पर गैर मौसमी बारिश से होने वाले नुकसानात और फसलों को हुए नुकसानात का फौरन अंदाज़ा लगाने रियासती चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है। वजीर आला ने कहा कि जिन अजला में गैर मौसमी बारिश से नुकसानात हुए हैं वहाँ के कलेक्टर्स के साथ बात करें और बारिश से हुए नुकसानात के मुतालिक रिपोर्ट तलब करें और तफसीलात हासिल करें। वजीर जी कमलाकर ने कहा कि गैर मौसमी बारिश से हुए नुकसानात की हुकूमत भरपाई करेगी। करीमनगर ज़िले में गैर मौसमी बारिश के मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए मुतासरीन से मुलाकात की। इस मौके पर बात करते हुए वजीर कमलाकर ने कहा कि इससे पहले जो नुकसानात हुए हैं उसको भूलने से पहले फिर नुकसानात का सामना करना पड़ा। वजीर मौसूफ ने कहा कि हर खराब होने वाली फसल के नुकसानात का मुआवजा दिया जाएगा। हुकूमत पर भरोसा करें। केसीआर 100% हुकूमत किसानों की है, मुआवजा 100% दिया जाएगा। केसीआर की हुकूमत पानी और बर्क़ी मुफ्त फराहम कर रही है और रैतो बंधु भी दे रही है। खरीदी मराकज़ भी खोले गए हैं। इस तरह नुकसानात का मुआवजा भी दिया जाएगा। वजीर ने यकीन दिलाया कि भग्गी धान भी खरीदी जाएगी। నేనున్నా ధైర్యంగా ఉండాలి. లక్ష్మే బాధపడితే చెప్పి నేను ఉన్నాగానే మీకు ఎందుకు భయపడడు? అన్నిటిలో ఉన్నా సర్పంచ్ వాళ్ళ మామ ఏం బాధపడదు. లక్షల పంటలు వేయినాయి కాదు. सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर के साथ किसी किस्म का समझौता करना इनके खून में नहीं है और खून उनके दिल में नहीं है। राजेंद्र की जानिब से मंगोड़ इंतखाबात में केसीआर के 25 करोड़ रुपए देने के इल्ज़ाम के खिलाफ चार मीनार की मंदिर के पास कसम खाने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर को इख्तियार से बेदखल करना ही वाहिद मकसद है। इनके खून के आखिरी खतरे तक इसके लिए जद्दोजहद करेंगे। राजेंद्र ने जो इल्ज़ाम लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। जब किसी बात का सबूत ना हो तो हर कोई भगवान को मानता है। अगर इन्होंने केसीआर से रकम ली है तो इनका खानदान बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर के खिलाफ जद्दोजहद करने की वजह से इनको इस तरह बेइज्जत दी जा रही है। वो निचली सियासत कर रहे हैं, बल्कि हकीकी मानों में केसीआर के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी को खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। సర్వనాశనం అయిపోయినా పర్వాలేదని దేవుడి మీద ఒట్టేస్తాం. నీకు ధైర్యం ఉంటే నువ్వు చెప్పింది నిజమైతే నువ్వు నిరూపించు. ఇవాళ నిరూపించడానికి సాక్ష్యం లేనప్పుడే కదా, ఏ దరువు ఏ ఆధారం లేనప్పుడే కదా దేవుడు గుర్తొచ్చేది. ఇవాళ నువ్వు మా మీద చేసే ఆరోపణ నీకు చౌకబారు రాజకీయ ఆరోపణ ఉండొచ్చు, కానీ ఇది నాకు ఆవేదన దుఃఖం తెప్పించే సందర్భం. 9 ఏళ్ళు నాకు తెలుసు ఎంత కష్టాన్ని ఎదుర్కొన్నాను. 130 కేసులు కట్టుకొని జైళ్ళలో పక్కి ఆస్తులు పోగొట్టుకొని కుటుంబంలో శుభకార్యాలు ఉంటే కూడా బెయిల్ ఇవ్వకుండా అడ్డం పడ్డా. అట్లాంటి లోపలతో రేవంత్ రెడ్డి ఆర్థిక లావాదేవీలకు రాజకీయం చేస్తాడని అనుకుంటావు. ఇది న్యాయమా నీకు? ఇది మంచిదా? ఉచ్చమైన రాజకీయాల కోసం కావాలంటే 20 ఏళ్ళు నిలబడి కొట్టాలి.
बीजेपी के रुकन असेंबली ई राजेंद्र ने कहा कि उन्होंने जिंदगी में कभी किसी को ब्लैकमेल नहीं किया है। मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने रेवंत रेड्डी के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में कसम खाने पर कहा कि इनको खुद पर एतमाद नहीं है, इसलिए मंदिर में कसम खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही हैं। रेवंत रेड्डी कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो इनको फौरन घर में महरूज किया जाता है, लेकिन कल मंदिर में कसम खाने के प्रोग्राम के लिए उन्हें आज़ाद छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ब्लैकमेल की सियासत को छोड़ दें और पागलपन की हरकतें बंद कर दें। रेवंत रेड्डी से उन्होंने सीधे सवाल करते हुए कहा कि तेलंगाना तहरीक के वक्त क्या कभी वो जेल गए हैं? मेरी तारीख और है और रेवंत रेड्डी की तारीख और है। उन्होंने कहा कि वो अब तक किसी भी मामले में आरटीए में दरखास्त नहीं दी है और ना ही कोई धरना दिया है। उन्होंने कहा कि पूरी जिंदगी में किसी को कभी ब्लैकमेल नहीं किया है। बीआरएस पार्टी के रुकन काउंसिल कौशिक रेड्डी ने कहा कि ई राजेंद्र और रेवंत रेड्डी ड्रामा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस ने रकम दी है, इस पर दोनों कायदीन मुतजाद बयानात दे रहे हैं। ई राजेंद्र और रेवंत रेड्डी दोनों एक ही है। उन्होंने कहा कि इनको सच बोलने दें। हुजूराबाद इंतखाबात के वक्त ई राजेंद्र ने 25 करोड़ रुपए रेवंत रेड्डी को दिए थे। वो हुजूराबाद की मंदिर में कसम खाने के लिए तैयार है। रेवंत रेड्डी और ई राजेंद्र में इख्तिलाफात की वजह से इनको खुलासा करना पड़ा। बीजेपी पार्टी के कायदीन में इख्तिलाफात हैं। ई राजेंद्र और रेवंत रेड्डी दोनों चोर हैं, चोर चोर का वावैला मचा रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी सदर बी संजय ने कहा कि रेवंत रेड्डी समझ गए हैं कि वो अब वजीर आला नहीं बन सकते, इसलिए इनके आंसू निकल आए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस और कांग्रेस पार्टी का इत्तेहाद हो चुका है। रेवंत रेड्डी जान चुके हैं अब इनको पीसीसी ओहदे से हटा दिया जाएगा। ई राजेंद्र ने जो इल्जाम लगाया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि इस पर वो खुले मुबाहिस के लिए तैयार है। कर्नाटक इंतखाबात में भी केसीआर ने रकम दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद पूरा हो रहा है, मंदिर में माथा टेकने पर मजबूर कर दिया है। हुकूमत ने कैंसर के मरीजों की सहूलत के लिए सिद्दीपेट में रियासत का पहला कीमोथेरेपी डे केयर सेंटर का आगाज किया है। ऐसे सेंटर्स रियासत के तमाम 8 मेडिकल कॉलेजेस और 23 अजला में कायम किए जाएंगे। वजीर सेहत व फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट में इस पहले सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस सेंटर में 4 बिस्तरों की सहूलत के साथ मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात सरबराह की जाएंगी। मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल और निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जानिब से भेजे जाने वाले मरीजों की दरकार कीमोथेरेपी की जाएगी। हुकूमत ने कैंसर के मरीजों के मुख्तलिफ तिब्बी मुआयनों के लिए 4 लाख रुपये तक मुफ्त मुआयनों की सहूलत का ऐलान किया है। मरीजों को जिन्हें अमराज कल्ब लाहक है के लिए भी ज़रूरी तिब्बी मुआयनों की सहूलत रहेगी। सिद्दीपेट में मुख्तलिफ नौइयत के कैंसर केसेस पाए जाते हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कैंसर के मरीजों की इब्तदाई जांच के अहकाम जारी कर दिए हैं ताकि इब्तदाई मरहलों ही में केस के जांच करते हुए इनका इलाज शुरू किया जा सके। आरोग्य श्री स्कीम के तहत कैंसर के मरीजों के लिए हुकूमत 2014 से 800 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। हुकूमत अमराज के बारे में अवाम में शऊर बेदार कर रही है, जिसके जरिए सिगरेट, तंबाकू के इस्तेमाल से मुमानियत, सब्जी खोरी, जिस्मानी वर्जिश की हौसला अफजाई की जा रही है। గత సంవత్సరం క్యాన్సర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు కీమోథెరపీ, రేడియోథెరపీ, అదర్ సర్వీసెస్, ఈవెన్ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్స్, మరి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ తదితర సేవల కోసం నిమ్స్ ఎంఎన్జే ఆసుపత్రుల్లో 130 కోట్ల రూపాయలు వరకు ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఖర్చు చేసి పేదలకు వైద్యాన్ని అందించడం జరిగింది. ఎంఎన్జే ఆసుపత్రిని కూడా ఈ మధ్యనే సరిపోవడం లేదని దాన్ని 750 పడకల క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిగా అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నాం. భారతదేశంలోనే కర్ణాటక, బెంగళూరు తర్వాత క్యాన్సర్ వ్యాధిగ్రస్తుల కోసం ఎక్స్క్లూజివ్గా 750 పడకల ఆసుపత్రి అనేది
మనం దేశంలో రెండవ అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్గా ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ను తీర్చిదిద్దడం జరిగింది. ప్రస్తుతం ఉన్న 450 పడకలు సరిపోతలేవని ఈ మధ్యనే అధునాతన సౌకర్యాలతో కూడిన మరో 300 పడకలను మరి ఎంఎన్జేలో యాడ్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు 750 పడకల ఆసుపత్రిగా ఎంఎన్జే హాస్పిటల్ అభివృద్ధి చెందడం జరిగింది. वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि हर एक के आंखों के मुआयने किए जाएं। कुंटी वेलगू के कैंप्स में अवामी नुमाइंदों से ताउन करें। कुंटी वेलगू प्रोग्राम की अमलावरी पर वजीर साहिब ने जायजा इजलास लेते हुए कहा कि तिब्बी अमले के क़याम और बआम और हमल व नकल की तमाम सहूलियात फराहम करें, किसी को कोई मुश्किलात पेश न आने पाए। वजीर मौसूफ ने कहा कि दरकार रकम को ज़िलेवारी तौर पर जारी कर दिया गया है। 59 दिनों में 1,17,00,000 अफराद के पंचायत में आंखों के मुआयने मुकम्मिल हो गए हैं। उन्होंने तिब्बी अमले से कहा कि वो जिम्मेदारी से काम करें और हुकूमत का नाम करें। वजीर आला के चंद्रशेखर राव हर दिन इस प्रोग्राम का जायजा ले रहे हैं। वजीर बलदी नज़्म व नस्ख KTR ने जारी साल से ज़िले सिरसिल्ला में मेडिकल कॉलेज में दाखिले की इजाज़त देने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया है। ज़िले की आवाम की तरफ से भी वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया गया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जारिया तालीमी साल से 100 MBBS नशिस्तों के लिए दाखिले को मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि एक मेडिकल कॉलेज में 3 बिस्तरों की गुंजाइश वाले हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन फॉर मेडिकल असिस्टेंट रिटर्निंग बोर्ड ने दाखिलों के लिए मंजूरी दे दी है। कालूजी नारायण हेल्थ यूनिवर्सिटी की निगरानी में मेडिकल कॉलेज का आगाज होगा। वजीर सेहत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने किसी भी अराजी पर कभी कब्जा नहीं किया है। बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन गैर जरूरी इल्जामात क्यों लगा रहे हैं, इसका खुलासा होना जरूरी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जारिया माह की 27 तारीख को उनकी ज़राई अराजी की तफसीलात मीडिया के सामने पेश करने के लिए मदऊ किया है। इस मौके पर रघुनंदन को भी मदऊ किया गया है। अगर मैंने कोई बेकायदगी की है तो रघुनंदन राव को वेंकटेश्वरा मंदिर में कसम खानी होगी। वो वहाँ पर बेकायदगियाँ नहीं की हैं, इसके लिए कसम खाने के लिए भी तैयार हैं। कोई आए या नहीं आए, वजीर मौसूफ ने कहा कि एक मंसूबे के तहत BRS कायदीन को बीजेपी निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि पूरी सियासी जिंदगी में उन्होंने अवाम की खिदमत की है, वो सियासत में है, इसलिए इन पर गैर जरूरी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तेलंगाना यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी ने कहा कि ई राजेंद्र रेड्डी के BC नकाब में रेड्डी हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 8 साल से KCR के करीब रहकर उन्होंने KCR की बदअनवानी दिखाई नहीं दी। सवाल करने वाले पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर अवाम खामोश नहीं बैठेंगे। KCR से अलग होकर KCR को सबक सिखाने का ऐलान करने वाले ई राजेंद्र ने अब तक कुछ नहीं किया है। KCR का हर राज जानने वाले अब तक कुछ नहीं कर सके। बीजेपी पार्टी में रहकर ई राजेंद्र KCR का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। ई राजेंद्र को चाहिए कि वो रेवंत रेड्डी से खुलेआम माफ़ी मांगे, वरना यूथ कांग्रेस ई राजेंद्र का घेराव करेगी। दक्कन के मुख्तलिफ इलाकों में जहां गर्मी की शिद्दत है, गैर मौसमी बारिश की पेशकशाइयाँ की जा रही है। शहर हैदराबाद में दर्जे हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी के बामे अरूज पर होने के बावजूद जुज़वी तौर पर मतला अबर आरूद रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में गैर मौसमी तेज़ हवाओं और कहीं बारिश का भी इम्कान है। हैदराबाद के अलावा निज़ामाबाद, रामागुंडम में गैर मौसमी बारिश की पेशकयासी की गई है। तेलंगाना के शमशाबाद बलदिया के हुदूद में इलेक्ट्रिक बाइक्स के शोरूम में अचानक बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े में 16 इलेक्ट्रिक बाइक्स जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस वाक़े की तफसीलात हासिल की। क़ब्ल अज़ीम फायर ब्रिगेड के ओहदेदारों ने इत्तला पर वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है।
अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसानात जरूर हुए हैं। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। मैलरदेवपल्ली पुलिस हदूद में बेटिंग केस में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक जारिया माह 17 तारीख को क्रिकेट बेटिंग मुकदमे में पुलिस ने सतीश नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया था। इसके पास से 6 लाख रुपए भी जब्त कर लिए गए थे। मजीद 2 अफराद को पुलिस ने इतवार के दिन आरामगढ़ चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। एसीपी गंगाधर ने बताया कि खम्मम से ताल्लुक रखने वाले रवि तेजा को कुछ अरसे से JNTU में जो क़याम कर रहा था और विशाखापट्टनम का साकिन मनोज मादापुर की ईपा सोसाइटी में रह रहा था। 17 तारीख के केस में दोनों फरार थे। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 13,05,500 रुपए की रकम भी जब्त कर ली गई। लंगर हाउस के इलाके मोती नगर में बैटरियों का एक सारिख गाड़ियों के मालिकीन के लिए दर्द असर बना हुआ है। नामालूम सारिख ने 2 दिन पहले 2 बैटरियों का सरखा कर लिया था। इसके खिलाफ लंगर हाउस पुलिस में 2 केसेस भी दर्ज हैं। नामालूम सारिख मोटरसाइकिल और कारों की बैटरियों का सरखा किया करता है। CCTV कैमरों के फुटेज में भी वो रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन इसके बावजूद लंगर हाउस पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम हो गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत में आते ही मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बर्खास्त कर देगी। बीजेपी की कामयाबी यकीनी, अमित शाह का खिताब। गैर मौसमी बारिश से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट पेश करने चीफ सेक्रेटरी को वजीर आला की हिदायत। वजीर कमलाकर ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया, पूरी मदद करने का दिया तयक़्क़ुन। केसीआर से समझौता करना मेरे खून में नहीं, केसीआर को बेदखल करने तक जद्दोजहद करने का आज़म। मुंगुड़ इंतखाबात में 25 करोड़ रुपए लेने का बीजेपी ने लगाया इल्जाम। हुजूराबाद में भी 25 करोड़ की रकम लेने का BRS ने लगाया इल्जाम। कैंसर के मरीजों के लिए रियासत भर में डे केयर सेंटर्स, मुफ्त तिब्बी मुआयने व अदविया। सिद्दीपेट सेंटर का वजीर सेहत ने किया इफ्तिताह। शमशाबाद में इलेक्ट्रिक बाइक्स के शोरूम में आतिशबाजी का वाकया, 16 बाइक्स जल कर खाकिस्तर, शॉर्ट सर्किट का शुबा।
क्रिकेट बैटिंग मामले में 2 अफराद गिरफ्तार, भारी रकम जब्त, मैलारदेव पुलिस पल्लेव पुलिस का कार्रवाई। नाजरीन, खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।